participants, actually, again, we are here for the sharing about research work to be continued with this pandemic and COVID-19. And we know that we are totally living in such an environment where we all will be fear how to continue our work, how to continue our education, how to continue our research work. So, keeping all these things in view, we always try to find out the way how can we go ahead. The show must go on. Whatever things are being happening in and around us, but we should continue our work wherever we are and what facilities we are having. So, with the help of remote access, and all these facilities, many publishers are coming forward to share their work as well as the services that they are providing either online, journals, e-books, and databases. We are providing all remote access services, uh, plus this IP range, IP-based services. So that keeping that thing in view, now today I have brought something different, but I think it has been repeating in India. A number of library professionals are providing this information, like innovative digital tools and techniques for the advancing learning for research work. As I mentioned, we are supposed to implement. We should supposed to use digital tools and techniques which are being utilized for research work. See, not only this is only for research work, but the teaching learning for regular teaching learning in the institutes like universities, colleges, and schools, and CFT institutes, CFTIs, Central Funded Technical Institutes. We all are using all these tools and techniques for teaching and learning point of view. So this time also, these tools and techniques are very, very supporting to our education system. And many, even government of India have already taken some initiatives for continuing the education with the help of some tools and techniques and some databases. With the help of those, research scholars can continue their education, and teachers, faculty members can also continue their teaching with the innovative ideas. As I mentioned, that information library network, InfluMap. InfluMap is also having some databases like eShow Sindhu. Sorry, eShow Sindhu actually consortium. Earlier there were different consortium for CFTI institutes, like for IITs, NITs, and IIMs and all these. DRTC Bangalore now, but these time universities. Mm, UGC Infonet and the CFTI and the industrial consortium, plus analysts. These three consortiums are working together under the umbrella of eSource Sindhu consortium. So eSource Sindhu is a service which is specially meant for negotiating with the publishers and how to bring them down in that Excuse, for the cost effective as these ex, publishers. excuse me, sir. Yes, sir. There is some problem in your sound. Voice is not clear. Okay. Okay. And sir, Is it, one more is it thing I okay? have to request. So Yes. the participants, they are from different disciplines. So you can use a mixed language, Hindi and English mix. जी सर अभी अभी हम करते हैं Okay. अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी में दे दूंगा नहीं ताकि दोनों 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 आ, दोनों पार्टी। जी 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 हाँ सर तो ठीक है, अब इंफॉर्मेशन आवाज लाइब्रेरी आ रही, नेटवर्क ओके अब आ रही। सर जी सर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये यूजीसी के अंडर में एक ठीक भैया। इंडिपेंडेंट बॉडी है इज इट ऑडिबल नाउ Yes, sir. Yes, it is clear so now. yeah, I was telling about the eShow Sindhu. eShow Sindhu is a consortium introduced by InfluMnet and Gandhinagar and and they are especially what they are doing is they are negotiating with the publishers, eminent publishers of
e-resources like e-journals, e-books, and databases. And then after they are finalizing the subscription to be paid them. So this basically ये जो ईशो सिंधु है ये ई जर्नल्स का ई डेटाबेसेस का एक बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि एक महासागर है जहाँ से रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और ईशो सिंधु से जो कंसोर्टियम है इसका जो बेनिफिट है न न केवल ये CFTI इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल फंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए है बल्कि इसकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए किसी भी टॉपिक पर सर्च करने के लिए। एंड देन आफ्टर शोध शुद्धि इज एक जैसा कि आप पता है कि एक उरकुंड करके एक ADS है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सभी CFTI इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड किया है, यूनिवर्सिटीज भी इसको यूज कर रही हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट आप अपने रिसर्च वर्क को चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें डुप्लीकेशन Excuse me, sir. अवॉइड कर सकते हैं। Yes, sir. Excuse me, sir. Still, your opening slide is on the screen, sir. Sir, of your Pardon, sir? presentation, next slide is not coming up, sir. It is just the opening slide. Oh, just a second, sir. Is not the third slide? Is not there? Information Library Network Database Services is not there. Please, Yes, sir, yes, please now set it it is. slides or more. Slides. Information Library Network Database Services there, not there? Yes, now it is visible, sir. The slide is there. Okay. Sir, please set it slides or mode. It's a slide sorter mode. Right, so okay, that's right. Sir, bottom of the slide. Is there slideshow is there? सर नीचे एकदम स्लाइड के नीचे जहां पर परसेंटेज दिया है उसके बगल में ये आ रहा है अभी स्लाइड आपके सामने? तो स्लाइड है लेकिन स्लाइड सॉर्टर मोड में है वो। Oh, slideshow is there. Is it okay now? नो सर वही सेम पुराना ही दिख रहा है। आपसे स्लाइड के नीचे जाइए, स्लाइड सॉर्टर में स्लाइड व्यू कर दीजिए, फिर विजिबल हो जाएगा। नीचे देखिए, Slide short, just a minute. नीचे में और नीचे सर। तो पहले इनेबल एडिटिंग करिए, ऊपर इनेबल एडिटिंग करना है ना, वो इनेबल एडिटिंग करिए पहले। नीचे ये नीचे और आगे सर वो जो एक मैसेज बॉक्स है, yes, yes. इसको एडिट करिए, इनेबल एडिटिंग, और नीचे सर जो येलो कलर के लाइन है उस पे Enable editing, enable editing. Is there now? नो सर ये प्रोटेक्टेड स्लाइड है। इस स्लाइड को सिर्फ प्रोटेक्टेड व्यू पहले ओपन करिए, स्लाइड्स प्रोटेक्ट है आपकी, तो इसे कैंसिल करिए, Just ये प्रोटेक्ट व्यू जो है तो इसको इनेबल एडिट करिए। नीचे edit. नीचे स्लाइड के ये सर ये प्रोटेक्टेड व्यू पे सर, प्रोटेक्टेड व्यू जो नीचे लिखे लाइन है उस पर क्लिक करिए, इनेबल एडिटिंग पर, इनेबल एडिटिंग ये दिख रहा है। Just a second.
Please cancel this view. सर ये स्लाइड प्रोटेक्ट व्यू में है। इस प्रोटेक्शन व्यू के ऊपर देखिए एक प्रोटेक्शन व्यू ओपन करना है पहले। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है जी। हाँ हेलो, आई जस्ट म्यूट किया तो ऑन करो ऑडियो। हेलो, इज इट ओके ना? कैंसिल करिए। Can you hear me? यस जी। सर, यस सर, यस सर। Now? ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अभी कैंसिल नहीं है सर। हाँ जा नाउ एडिटिंग आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज। अब बोला इनेबल एडिटिंग करिए सर। इनेबल एडिटिंग जो लिखा है इसी के ऊपर Slide show is there. Slide show is there. तो ये तब तक शो नहीं होगा ना जब तक व्यू एडिट नहीं होगा। नीचे ये प्रोटेक्ट व्यू है ऑप्शन सर, उसके नीचे Protect view. Where is the protect view? So, यस, तो क्लिक करिए, एडिट करिए पहले। हाँ क्लोज करिए इसको। ओके, ऊपर आइए सर, ऊपर है। हाँ बस बस यही इसी को इनेबल एडिटिंग कीजिए। राइट, इनेबल करिए इसको। हाँ अब ठीक हो गया। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। done. यस सर, अब व्यू करिए, अब पूरा स्लाइड व्यू करिए, हो जाएगा। यस Is okay now? यस यस, फुल व्यू है। ओके सर, अब ठीक है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And sorry for the interruption. The technical things are there. Anyway, can you see the screen now? इट्स क्लियर नाउ। Is it clear now? Okay. So I was talking about the initiatives of InfluNet, Information Library Network. This is the backbone nowadays from the Government of India, MHRD, and the databases are available with all without any any kind of charges. So research scholars and the faculty members can use all these resources. And the second thing is that I was talking about Urkund. Urkund is also PDS, plagiarism detection software, which is available with all institutes and universities. They can use it. The research scholars can also use it. Similarly, some University of India, other institutes also can use it. I was talking about internet database sources. ANLIST program is also available with the help of all research journals and databases have been listed out, and these are available on the website of Information Library Network. आप आवाज आ रहा है सर आपको? ठीक है जी सर। एक शोध गंगा के बारे में बताना चाहूंगा। शोध गंगा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। जितना भी यूनिवर्सिटीज में, जितना भी इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में जो वर्क हुआ है, रिसर्च वर्क, सारे रिसर्च वर्क का एक डेटाबेस है, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपना जो डुप्लीकेसी अवॉइड करना है। इफ यू वांट टू अवॉइड योर डुप्लीकेसी इन योर वर्क, और इसमें इनोवेटिव आइडियाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। For that point of view is very, very important. Now I will take you to Information Library Network Institute there. All initiatives of InfoNet are. Can you see the screen, please? Can you see the screen? Yes, yes. Fine. So I was talking about this. I was talking about the Shodh Ganga. Shodh Ganga is having the research work done already in the university and colleges. उसका इंफॉर्मेशन इसमें रहता है, और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं। Similarly, Shodh Gangotri. Shodh Gangotri is the name research.
research work. Shodh means the research, and Gangotri the origin of the Ganges. So Gangotri is the original place of the Ganges. Similarly, जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग वर्क है, जो सिनॉप्सिस आप तैयार करते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी आप डिसाइड करते हैं and literature review आप करते हैं. So all these things are available with the Gangotri. So you can avoid the duplicacy of your synopsis of your questionnaire, of your research methodology. For avoiding that kind of things, you can use this Shodh Gangotri. EPG Pathshala, especially EPG Pathshala is especially meant for those PG courses available in different universities. So they are having a curriculum, and they can different courses are available in the PG Pathshala, and they are having different syllabus according to the courses you choose. So that kind of supportive resources are available with the research scholars. They can use it. Similarly, Adhyan, E-Adhyan is also e-books and all these. These are available with the EPG Pathshala, which can be used by the research scholars. And obviously ऑफलाइन कैंपस का जो कंसेप्ट है कि जो कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन भी वो देख सकते हैं. सो इतनी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट में दिया हुआ है. इसके अलावा आयरिस के बारे में अभी रिसेंटली ये सेटअप हुआ है. IRINS is specially meant for Indian Research Information Network System India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, और इसमें काफी अच्छा कलेक्शन है. इसमें जो पब्लिकेशंस है 63 लाख पब्लिकेशंस आर अवेलेबल देयर. Sorry, 6.33 lakh publications are available in IRIS. The research work done by the faculty members, research work done by the research scholars. This information सारा इसमें available है. विद्वान इस अभी काफी चला हुआ है. अभी रिसेंटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है. विद्वान इज अ डेटाबेस ऑफ experts available in the universities, experts available in the institutes, IITs, and special institutes like TIFR, NCL, National Computer Laboratories, and National Physical Laboratories, BARC. So these research experts are available in the Vidwan. So any faculty member, any research scholar can be registered there in the Vidwan portal. Now I'm coming to the ICT initiative of the MHRD. MHRD is also taking care of the facilities to be provided to the institutes, universities, AICT institutes also there. So like SWAYAM is also a course, coursework. Similarly, the SWAYAM Prabha just started with the 32 channels are available with the SWAYAM Prabha, having different courses. So I just am taking to this in place. और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी आप सुना होगा. नेशनल डिजिटल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसमें वो लिटरेचर अवेलेबल है जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं है. सी व्हाट हैपेंस, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड जो सुपरवाइजर्स हैं, वो अपना जो वर्क है जो करते हैं, जो पेपर प्रेजेंटेशन है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, वो वर्क लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होता. वो दैट रिमेन्स विद द फैकल्टी मेंबर्स आल्सो. लाइक क्लास नोट्स also available remain with the faculty members. These may not be the part of the library. So these are being shared by the eminent publishers, faculty members with the students. So how they are doing it? All institutes, like including universities, they are having an IDR, institutional digital repository. institutional digital repository हर इंस्टीट्यूट का बना हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में एक बना हुआ होता है. और DSpace एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसी पे बेस पे बना हुआ IDR, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी. और इसमें हर फैकल्टी को अपना जो वर्क है, रिसर्च वर्क किया है, बुक लिखा है,
क्लास नोट्स हैं, इवन जो रिसर्च उनके सुपरविजन में जो वर्क किया है जैसे स्टूडेंट्स ने रिसर्च वर्क, उसका भी इंफॉर्मेशन देना होता है. So this is mandatory for all of us. So this kind of literature is available. और वो जो इंस्टीट्यूट्स का यूनिवर्सिटी का जो लिटरेचर है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में सबमिट होता है. After that, they are making union catalog of all these resources. Then after they are providing it. So मैं वही आपको बताने जा रहा था कि ये जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी जैसे KNIPSS यूनिवर्सिटी है और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज है, वो इंस्टीट्यूट्स भी अपना रिसर्च वर्क को या जो फैकल्टी मेंबर्स ने कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, उनका जो प्रोसीडिंग्स है, उनके पेपर प्रेजेंटेशन है, सारा का सारा नॉलेज, ये बड़ा ही एक अच्छा सपोर्टिव टूल है जिसको रिसर्च स्कॉलर यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल IIT चेन्नई में और IIT मुंबई में अगर कोई किसी फैकल्टी ने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया, तो जयपुर या सुल्तानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, KNIPSS यूनिवर्सिटी के, उनको मालूम नहीं कि नॉलेज कहाँ पर है. So they can search it with this National Digital Library and they can use it. So this kind of literature, ये इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज. तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू और रिसर्च का डुप्लीकेसी भी अवॉइड कर सकते हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो लिटरेचर कहीं ऑलरेडी हो चुका है तो आप ना करें, तो इसको आप यूज कर सकते हैं. Similarly, I was talking about all these initiatives by MHRD, Minister Honorable Pokhriyal sir is there, and they have introduced number of things like same different courses are available for the young students. Then after I tell you about Swayam Prabha. Swayam Prabha actually these are different courses are available, videos are available with the help of 32 channels DTH, with the help of DTH. अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है, हर CFT इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्वयं प्रभा कोर्सेज है. You won't believe in Rajasthan many colleges under the AICT courses and Rajasthan Technical University, many universities are having, many colleges are having Swayam Prabha, and their students are registered themselves free of cost. Different courses हैं 32 चैनल के थ्रू वो इसको अवेल कर सकते हैं. डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बता रहा था, 24/7 इन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर. As mentioned here, more than 3.8 crore books are available with in the NDL. So this kind of huge collection they are having. This is not only for CFT institutes, for all, even in universities, college students, as well as the special research scholars of research institute like BARC and NCL, Pune NPL. So this kind of literature they can use it. Virtual lab is also there. You can see number of institutes are associated with the virtual lab. What work is going on, what the research work is going on, these are shared here. So you can also utilize this kind of information with your study, and you can continue your, like eYantra. eYantra is also a supportive tool introduced by MHRD. This is especially for engineering colleges, engineering institutes, giving the training to the UG and PG courses. FOSSEE is that free and open source software for education, especially FOSSEE is especially meant for open sources. Open sources available in India and abroad, around the globe. These are available with this FOSSEE software and database, and it is freely available. So that can also be utilized. आप कर सकते हैं अपने इस शोध वर्क में, शोध कार्य में. इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं FOSSEE में, सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल हैं, और आप कहीं से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और इसको यूज करके आप अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं. टीचर्स भी इसका काफ़ी यूज कर रहे हैं अभी. Number of faculty members are using it.
for their teaching point of view, especially for UG and PG students, master degree having the master degrees. Sorry. So these are the things I was sharing about all these. Now I'm coming to the next one is that number of, as I mentioned, beside Government of India's initiative under the ASTE MHRD, as well as by InfluMNet Gandhinagar, Gujarat, we are having some other tools and techniques through which we can continue our education. We can uh, have the help of this kind of so like for example I give you the like Mendeley. Mendeley is also a citation management tool. With the help of that you can monitor, you can assemble, you can collect and compile the databases and documents what you are doing for your research work, that you can monitor it, that you can use properly in your research work. So Mendeley is part of that tool which can be used for research work. Similarly, Jotaro. Jotaro is also a tool. With the help of that, you can use your citation, you can use your data, compile, compare, and compile, and then you can use in your study work. So Jotaro is also a supportive tool which can be utilized for your work. So these are the tools which can be utilized आपके शोध वर्क में काम कर, स्पेशली हम लोग आज जो कर रहे हैं कि स्पेशली रिसर्च वर्क में कहाँ कहाँ पर हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को यूज कर सकते हैं. यूजी कोर्सेज या जो रूटीन में आपकी जो स्टडी होती है, इसके अलावा जो स्पेशली जो R&D वर्क है इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटी में R&D वर्क होता है, उसमें भी यूज होते हैं. इसी तरीके से जूमला भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. इसको आप अपना वेबसाइट वगैरह यूज करने में भी यूज कर सकते हैं. कहीं आपको आपका जो वर्क है उसको हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी आप जूमला को यूज कर सकते हैं. अभी इसी तरीके से गूगल स्कॉलर का भी यूज हो रहा है, काफी यूज कर रहे हैं गूगल स्कॉलर का. एक्चुअली इंफॉर्मेशन डिस्कवरी में इसका काफी यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में इसका यूज हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा जो इजी प्रॉक्सी है, इजी प्रॉक्सी जो डेटाबेस है, जो टूल है, उसका भी यूज आपका रिसर्च वर्क में स्पेशली जो ई रिसोर्सेज के अंदर काम आ रहा है. जो ई रिसोर्सेज है उसको किस प्रकार से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं. सो इजी प्रोसेस को भी आप रिसर्च में टाइम टू टाइम और जहाँ पे wherever you want to use it, you can use it. Similarly, I bring you to that folio. Folio गवर्नमेंट अभी रिसेंटली अभी इसको यूज किया है, मई में इंट्रोड्यूस किया है एप्सको ने. एप्सको ने अभी रिसेंटली अभी किया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, स्पेशली LSP इनोवेटिव स्पेशली फॉर दैट folio, FOLIO. सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में. सिमिलरली लिंक डेटा में क्या है कि जितना भी आपका जो डेटा है अवेलेबल इंडिया में और अब्रॉड आपके टॉपिक पर, वो आप वहां से ले सकते हैं और लेने के बाद आप उसको अपनी स्टडी के साथ में कंपेयर करके उसका यूज कर सकते हैं. तो इससे क्या आपकी जो रिसर्च वर्क है उसमें एक्यूरेसी आएगा. जो एक टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव रिजल्ट्स आउटपुट आता था, वो एक्यूरेट आएगा आपका. तो उस पॉइंट से लिंक डेटा का यूज किया जाता है. अभी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर सिंह साहब. वो ये कि म्यूडल करके है, म्यूडल जो आपका लर्निंग सिस्टम है मैनेजमेंट का, वो आप कर सकते हैं. म्यूडल के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ म्यूडल में. जस्ट सेकेंड. So this is the Moodle's main list, and here you can see so different courses are there. ओपन सोर्स लर्निंग जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो Moodle आपको अवेलेबल करवाता है. और विद द हेल्प ऑफ दैट आप वर्क को, आपको रिसर्च एक नया टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं. इनोवेटिव आइडियाज आप यूज कर सकते हैं. जो वर्क ऑलरेडी हो चुका है उसको डुप्लीकेसी अवॉइड कर सकते हैं. और जो नए जो टूल्स हैं, नए जो रिसोर्सेज हैं,
उनका अपने रिसर्च वर्क में इंकॉर्पोरेट करके और एक नया सबमिशन दे सकते हैं। तो आपका जो वर्क होगा वो दूसरों से अलग तरह का होगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपनी स्टडीज के अंदर। देन ब्लैक बोर्ड एक टीचिंग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया स्पेशली टूल है। विद द हेल्प ऑफ दैट फैकल्टी मेंबर्स इसका काफी यूज कर रहे हैं इसका। और ब्लैक बोर्ड का जो यूज है, आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स हुआ जो आपका जो वर्क हुआ, उस वर्क को आप ब्लैक बोर्ड के हेल्प से आप देख सकते हैं। बल्कि ब्लैक बोर्ड आपको जो टूल है वो आपको काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। ये मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ and I can give an idea about Blackboard. This is specially meant for teaching learning point of view. Number of videos are available. With the help of that, you can, like for example, I'm giving you these videos are available. With the help of that, you can have an idea about the research work being done in the institutes, India and abroad, right? तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे आपका जो शोध वर्क है, आपका शोध कार्य है, वो आपका काफी कंफर्टेबल और इजीली और बेटर होगा। तो ये बेटर करने के लिए ही आइडियाज हैं, जिससे तो काम तो खैर सभी कर रहे हैं, बट कहाँ कहाँ डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में और स्पेशली यूनिवर्सिटीज में एंड इंस्टीट्यूट्स में। तो उस डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए और इस तरह के जो टूल्स एंड टेक्निक्स उससे इनोवेटिव आइडियाज को आप इनकॉर्पोरेट करके एक नया एक डिफरेंट डायमेंशन दे सकते हैं अपने रिसर्च वर्क को। अब मैं बात करूंगा अबाउट एग्रीगेटर्स एंड गेटवेज। Whatever we are subscribing in our institute, whatever we people university are having the resource material like e-resources, e-books, e-journals, databases, उन सबको कंपाइल करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना, एग्रीगेट करके सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये एग्रीगेटर्स का काम होता है, लाइक JGate. For example, I'm giving you the example of MNIT of my institute, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. We are just spending crores of rupees on subscription of e-resources every year. So वो जो पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं, बट उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका प्रॉपर ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज अगर करना है, उसके लिए एग्रीगेटर का होना बहुत जरूरी है। एग्रीगेटर से ये फायदा है कि आपको एक अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म सारा मिल जाएगा। दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसे JGate में ये इन्होंने सारे रिसोर्सेज को जो हमने सब्सक्राइब किया वो एक प्लेटफॉर्म पे ला करके ये दिया। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्च करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर साइंस डायरेक्ट एल्सेवियर में अवेलेबल है, टेलर फ्रांसिस में अवेलेबल है, स्प्रिंगर में अवेलेबल है, या IEEE में अवेलेबल है, wherever it is available they will show the results as single platform. ये एक फेडरेटेड सर्च का काम करता है। निम्बस ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है निम्बस ने अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया, जिस्ट ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम टेक्नोलॉजी गुड़गांव ने निम्बस को काफी डेटाबेस का काम अच्छा काम कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं, प्योर साइंसेज में स्पेशली वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस में आई केम टू नो थ्रू माय फैकल्टी मेंबर्स ऑफ MNIT। अगर हम वेब ऑफ साइंस में अगर कुछ वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री, इफ यू प्रोवाइड सम वैल्यूज इन वेब ऑफ साइंस, सो ये उसका आउटपुट आपको एक डिफरेंट एक एस्टिमेटेड बना करके देगा, आपको एक सिमुलेशन बना करके दे देगा कि ये इस तरह का रिजल्ट आएगा और ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ये केवल सर्चिंग में ही काम नहीं आता है, बल्कि इसके अलावा वो जो रिसर्च वर्क में रियल रिसर्च वर्क होता है प्योर साइंसेज में, especially physics, chemistry, maths, or biology, and all these subject associated topics like biotechnology, biosciences. So इस तरह के में ये वेब ऑफ साइंस का काफी सपोर्टिव है। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में, फैकल्टी मेंबर भी यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज का वैल्यू डालते हैं किसी चीज का, तो उसका रिजल्ट भी बना के वो देता है टेंटेटिव। So this is really innovative tool and can be utilized in your study work. So ये सारे एग्रीगेटर्स हैं। स्कॉपस सब जानते हैं कि स्कॉपस का कितना यूज है।
एक फेडरेटेड सर्च के अंदर स्कॉपस का काफी यूज है, और बल्कि इसमें अपने भी इन्होंने कुछ ओपन सोर्स दे रखे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो स्कॉपस का काफी यूज स्पेशली हो रहा है, हैवी डिमांड है इसके यूनिवर्सिटीज में स्पेशली एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। Then I'd like to share something about is bit different, but part of my presentation. Like some courses are available, which can be you know continue the members, the scholars, and any student, even UG and PG, they can also use some continue their education with the help of these courses. आपका जो मेन वर्क है उसके साथ साथ आपका जो मेन काम एजुकेशन का है उसके साथ साथ में आप डिफरेंट कोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जैसे NPTEL वीडियोस आजकल बहुत कॉमन है ये। अर्लियर अगर आपको पता हो तो NITTR चंडीगढ़ और भोपाल और चेन्नई में ये होता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग इसको प्रोड्यूस करते थे। ये इवन यूनिवर्सिटीज में भी होता था, IITs में भी वीडियो प्रोडक्शंस होते थे, वो सारा इसमें NPTEL में अवेलेबल है। और NPTEL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD का एक वो टूल है, डेटाबेसेस है वीडियोस का, जो उसको यूज कर सकते हैं इन ऑल टॉपिक, नॉट ओनली ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, ये प्योर साइंसेस के अलावा ये अदर जो ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है और आर्किटेक्चर और प्लानिंग है, इन सब चीजों का भी इसमें अवेलेबल है। सेम प्रभा का मैंने बताया 32 चैनल्स में डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोसेरा में भी काफी इस तरह के जो ओपन सोर्स है ये इसमें फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसमें वो नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज है, इसको काफी स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। अभी कोसेरा का तो काफी चलन हो गया, अभी प्रचलन हुआ है, और इसका इसमें आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहते हैं, आपको हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी कोर्सेज हैं कोसेरा में आप यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सी इट देन आई कैन टेक यू टू द प्लेस, they are having their own website, you can approach there. There is no fee to join this one. You can see IBM is there, Stanford, IBM, Duke, and Google, and Illinois. All these important, these agencies are available there. Their universities and institutes and company corporate sector is also available. So they are joining the hands with the Coursera, and they are providing number of courses in different subject areas. If you want to learn more, you can visit their website, and then you can have an idea which course you would like to join. So वो आप अपनी रिसर्च वर्क के साथ साथ ये भी आप काम कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि डिजिटल टूल्स का यूज ऑप्टिमल करें, सो दैट रिमोटली आप अपनी जगह जहाँ wherever you are, at home, at workplaces, in the university, in the lab, or any other technical institutes, wherever you are, you can use this digital tools in your studies as well as teaching also. ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं ओनली स्कूल स्टूडेंट्स का, बात करें स्टूडेंट को ही बेनिफिट होना है, रिसर्च को बेनिफिट हो रहा है, टीचर्स को भी आप अपने अपडेट होना होता है। अपडेट हुए बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो सुपरविजन करना है स्टूडेंट्स का जो वर्क का, उसमें भी काम आएगा। जो नया आइडियाज आपको देना है टीचर्स को, उसके लिए टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं लैब्स में, यूनिवर्सिटीज में, और जो कैन से जो बॉटनी में है, जूलॉजी में है, या कोई और दूसरी रिसर्च केमिकल लेबोरेटरीज होती हैं, उसमें जो रिसर्च वर्क हो रहा है लैब्स में, उसमें भी इसके टूल्स एंड टेक्निक्स का जो नॉलेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हायर स्टडीज के जो स्पेशली इंस्टीट्यूट बने हुए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इस इन मुंबई, TIF टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस काइंड ऑफ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग भी इसका, जैसे ICSSR जो दिल्ली में है, एंड इसके अलावा जो डेस्कटॉप वगैरह हैं जो डिफेंस में काम कर रहे हैं, सो वो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे कैन आल्सो यूज ऑल दीस थिंग्स। सो आज के प्रेजेंटेशन में मैं
यही कहना चाहता था कि जो भी हमारे जो टूल्स अवेलेबल करवा रहे हैं पब्लिशर्स, या हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं या ओपन सोर्स में अवेलेबल है। इवन यू वोंट बिलीव, अगर आप ओपन सोर्स को प्रॉपर्ली यूज करते हैं अपनी स्टडीज में, आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और आप नए आइडियाज आप सोसाइटी को दे सकते हैं और कम्युनिटी को दे सकते हैं। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये होगा कि जो आइडियाज अभी रिसेंटली चल रहे हैं R&D वर्क में, उसको प्रैक्टिकली आप अपने वर्क में काम करके और उसको नए आयाम दे सकते हैं, नया डायमेंशन दे सकते हैं, और एक इस प्रकार का काम दे सकते हैं कि जो आने वाले जनरेशन में और आने वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन सबके बेनिफिट में हो। ये सारा मैं आपको शेयर करना चाहता था। और NIPS यूनिवर्सिटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आभार। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, और इनका ऑप्टिमल यूज करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। ओवर टू सिंह सर। सिंह सर। सेम टू यू सर। वेलकम सर। राजस्थान में कि इस समय बहुत ज्यादा है, बल्कि अफेवल्स हैं। अब देखिए ऐसा है कि राजस्थान, एक बता दूं राजस्थान के बारे में, राजस्थान एक ओनली ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑल क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट मिलेगा। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ रेगिस्तान अरावली पहाड़ है, तो एक तरफ रेगिस्तान डेजर्ट है, एक तरफ जहाँ पे नक्की जो माउंट आबू में बर्फ भी पड़ता है, स्नोफॉल भी होता है। तो इस प्रकार का जहाँ जैसे ये झीलों की नगरी, सिटी ऑफ द लेक्स उदयपुर, पिंक सिटी जयपुर, सन सिटी जोधपुर, like different kind of cities are there having different qualities. So Rajasthan is Rajputana. His name was Rajputana. Rajasthan is full of this kind of along with it, along with it, political heat in bonus. I won't comment because I'm part of the government, so I won't comment about that. And you people know about all these things. क्या क्या चल रहा है, So let them continue. Let them continue. We are not bothering about it. We will continue our show. See, मेरा एक ही मकसद रहता है अभी तक 37 years के एक्सपीरियंस में मेरा ये है कि whatever the situations are there, research scholars हैं, students हैं, wherever you are, we have to continue our work. That's it. यही एक मंत्रा है. With the help of that, we can go ahead. Here is the question, Dr. Singh. Here is the question from Dr. Rajiv Yadav. He wants to know that if I want to check that on any topic has been used for this thesis or not, how can I check it? देखिए उर्कुंड एक सॉफ्टवेयर है, उर्कुंड में अभी PDS आया है, वैसे टर्निटिन का भी यूज हो रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते। देखिए आप जो टॉपिक लेना है, टॉपिक लेने से पहले आप वो जो शोध गंगा में जो काम हुआ है इंटरनेट में, आप उसमें जाके देखिए कि जो आप ले रहे हैं टॉपिक वो उससे ऑलरेडी हो तो नहीं गया है, उसका रिलेवेंट है, उसका रिलेवेंस है, उसका पार्टली उसका यूज हुआ है, तो आप वहां जाकर के शोध गंगा में आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, सिनॉप्सिस बेस पे तैयार कर रहे हैं, तो आप शोध गंगोत्री में आप देख सकते हैं। शोध गंगोत्री में जहाँ ओरिजिन हो रहा है उसका, आपका जो वर्क का ओरिजिन हो रहा है, तो उसी में आप जाके देखिए कहीं जो आप बना रहे हैं सिनॉप्सिस वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, कि पहले तो नहीं हुआ है, तो योर वर्क